and why you are in Canada right now. And if you don't get picked in that lottery, you have to leave the country. So that's what happened with me. यार अगर तुम्हारा गोल ही जिंदगी का यूएस में सेटल होना है और तुमको यूएस से किसी ने लात मार के बाहर निकाल दी तो एंजाइटी Really. होगी. Let's talk about this visa thing because I know like you had a story for personal story behind it. I want to talk about like understand more on this visa anxiety where people don't get into the lottery and matlab, and all their investment, like time investment and money investment, like building a life in US can just like go up in the air क्योंकि भाई नहीं आया तो थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताओ कि how was it for you and what challenges were you facing and why you are in Canada right now? Yeah, so once you finish your studies, right? Say you finished a master after 2 years in US, you you get a like a temporary work visa called an OPT, which is called optional practical training for 1 year. And if you have a degree in Yeah. STEP, you get it for 3 years. It's additional two Right. years. So Right. डिग्री के बाद तुम 3 साल काम कर सकते हो. And during those 3 years, if the company you're working for uh, agrees to apply for an H-1B visa, then you have to go through that H-1B lottery those 3 years. And if you don't get picked in that lottery, you have to leave the country for a minimum of 1 year before you're back. So that's what happened with me. In fact, um, I went through 4 lotteries, not just three. बिकॉज़ मेरे पास जॉब ऑफ़र तभी था जब मैं कॉलेज में था। तो मैं जब कॉलेज में था मेरी कंपनी ने तभी अप्लाई कर दिया था लॉटरी के लिए। हाँ. तो 4 लॉटरीज़ में मेरा नहीं निकला, सो आई हैड टू लीव द कंट्री एंड आई स्पोक टू माय मैनेजर एंड लकीली दे हैड अ ऑफिस हियर इन वैंकूवर, सो आई एम इन वैंकूवर राइट नाउ। एंड आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड माय वाइफ वर्क्स इन सिएटल, सो शी इज़ स्टिल इन सिएटल। So वीज़ा एंग्ज़ायटी तो होती है स्पेशली व्हेन यू बिल्ड अ सर्कल, राइट? When you once you have friends, you hang out with, you have family in the area. You have to leave all of that, close your lights one chapter and then move to other country. Anxiety hoti hai, but there comes a point where I feel you just become indifferent, and that is what has happened to me now. Like, because see, I got the education I wanted. I paid off the Right. loan. Hmm. I have the job that I like. Um, so what's there to lose? Like, uh, मतलब नहीं नहीं लेंगे यूएस में तो नहीं लेंगे कहीं और विल मेक अ लाइफ राइट लाइक यू नीड टू हैव अ सर्टेन कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल्स. Like if you Yeah. think good enough at what you do, you'll find a job elsewhere जहाँ आपको रहना है. You'll make your own life. So I think that anxiety is normal. I also had it. My parents had it more than I did क्योंकि उनको लगता है ना कि बच्चा बाहर गया है, इसने No, no. मेहनत कर है, इतना लोन उठाया है, and after that he's not getting the payoff, so on. But it is what it is, I guess. And in fact, I think कि टेक वर्कर्स ने ना काफ़ी अब्यूज़ भी किया है इमिग्रेशन सिस्टम बिकॉज़ जब आप like not every engineer that is on HMB that I've met here is amazing to put it short and short. Yeah, there are great engineers, but those are maybe minority. so, so yeah, I mean, and if you look at from an American's perspective, right, the H-1B or any other work visa, it was meant to hire like workers, like meant to hire for skill sets which you couldn't find in Americans, right? No. तो अगर आपका अ, कोई आप कहीं किसी देश से किसी को वीज़ा पे ला रहे हो जिसका काम सिर्फ़ 5 बटन पे क्लिक करना है, तो वो तो Yeah. अमेरिकन भी कर सकता है ना। सो देयर इज़ एन ऑब्वियस रीज़न फॉर एन अमेरिकन टू गेट पिस्ड एट दिस सिचुएशन एंड especially companies like TCS Hmm. and Accenture, all these consulting companies, right? They have really exploited this visa and basically messed it up for every other big tech company that wants to hire on this visa. Uh, Hmm. so Yeah, and H-1B का क्या होता है ना basically you get like I think there are about I may be wrong on this but about 80,000 picks every year Right. and around 4 to 500,000 people apply every year for the lottery. Wow. और उस 80,000 में से I think half सॉरी उस 400-500,000 में से आधे से ज़्यादा आपकी सिर्फ कंसल्टिंग कंपनीज ही अप्लाई करती हैं. तो जितने भी आपके Hmm. बिग टेक है या बे एरिया के स्टार्टअप्स हैं वो 500 के में से इट्स वेरी लिटिल मे बी 50,000 या 20-30,000 करते होंगे वो अप्लाई. एंड वो तो सब अच्छा टैलेंट ही है आई थिंक मोस्ट ऑफ इट. Yeah. तो या दैट्स वेयर दिस एंटायर सिचुएशन गेट्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक.
Yeah, and as far as like coming back to anxiety, I feel it's natural, but you should just यार अगर तुम्हारा गोल ही ज़िंदगी का यूएस में सेटल होना है और तुमको यूएस से किसी ने लात मार के बाहर निकाल दी तो एंग्जायटी होगी। मेरा नहीं था ऐसा गोल कुछ, तो मुझे Mm. वो हुआ नहीं। बट आई गेट इट हाउ पीपल माइट फील। Yeah. So right now you are in Canada, but कनाडा या का वीज़ा मिल गया मतलब। वर्क परमिट पे हूँ मैं अभी कनाडा में। अच्छा, which is sponsored by एक्चुअली a company. कनाडा में भी ना एक टाइम क्या 2-3 साल पहले तक पीआर और सिटीज़नशिप मिलना बहुत ईज़ी था। अब Mm. यहाँ भी बहुत हार्ड हो गया है और यहाँ की इकोनॉमी तो अलग ही पैरेलल पे चलती है, इनको स्किल्ड वर्कर से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे Mm. पास नोबेल प्राइज़ विनर हो कुछ, यू आर इन द सेम कैटेगरी एज़ अ नर्स। सो यहाँ Oh. पे क्या होता है कनाडा लैंडमार्क्स बहुत ज़्यादा है, बट Mm. और कम एरिया ना लिवेबल है। तो यहाँ पे तुम्हारे माइक्रोकॉज़म्स होते हैं, लाइक वैंकूवर एक है, टोरंटो एक है, 2-3 और छोटी-छोटी Mm. सिटीज़ हैं, सब लोग उधर ही रहते हैं। बहुत स्पार्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो उसकी वजह से और इनके पास लोग नहीं हैं बेसिकली। Mm. तो आई रिमेंबर आई थिंक टोटल पॉपुलेशन अराउंड 40-45 मिलियन है यहाँ की। फॉर कंपैरिज़न Mm. यूएस लाइक 350 मिलियन। Mm. आगे 40-45 मिलियन है और उसमें से इनके 4 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं। कैन यू Mm. इमेजिन 10% ऑफ योर पॉपुलेशन बीइंग इमिग्रेंट्स? क्योंकि इनके पास Oh. लोग नहीं है, तो इनको आपके कॉफ़ी शॉप में काम करने के लिए या फूड डिलीवरी के लिए या नर्सेज़, सिक्योरिटी गार्ड्स, दे नीड पीपल फॉर डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। इधर थे नहीं, सो दे Mm. हैड इंक्लूड इमिग्रेंट्स। बट कोविड के टाइम इन्होंने ओपन बॉर्डर्स कर दिया लिटरली, एंड आई थिंक दे लाइक टुक इन एवरीवन हू वांटेड टू कम एज़ लॉन्ग एज़ यू बिलॉन्ग टू सर्टेन प्रोफेशंस। तो मैं एक दिन एक टैक्सी में बैठा था, वो बंदा टैक्सी चला रहा था, तो मेरी उससे बात हुई, मैंने पूछा आप कैसे आए यहाँ पे? बोलता है मैंने नैनी की डिग्री करी। Mm. तो मैंने कहा नैनी की कौन-सी डिग्री होती है? तो बोलते हैं कुछ होता है, वो सर्टिफ़िकेट देते हैं और फिर इधर आके आप नैनी बन जाओ, 1 महीना किसी के घर में किसी बच्चे का ध्यान रखो और फिर नौकरी छोड़ दो। आपको उसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा बेसिकली पीआर कंप्लीशन के बाद आप वो नौकरी छोड़ दो एंड देन यू हैव द पीआर। आफ्टर दैट यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू। तो ऐसा बहुत गेम हुआ है यहाँ पे सिस्टम, एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर बहुत हार्ड हो गया है पीआर मिलना यहाँ पे, लाइक इट्स दे आर नॉट गिविंग इट आउट टू एनीवन। इफ यू हैव Mhm. लिव्ड इन कनाडा फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स तुम रहे हो तो मिल रहा है, वरना इट्स as long if you're not falling in those Mm. professions that they release every year, you will not get the visa basically. इनका जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वो था तो वो बंद हो गया क्या? है ना पॉइंट कुछ बेस्ड सिस्टम, बट पॉइंट का कट ऑफ इतना ज़्यादा है, लाइक हम्म। देयर इज़ नो पॉइंट। या आई मीन इट्स थोड़ा इरिटेटिंग भी है वो, मतलब तुम यू कैन बी लाइक एन एक्सट्रीमली क्वालिफाइड पर्सन एंड वांट टू कंट्रीब्यूट टू कनाडा's economy, but uh, someone much less qualified than you might have higher points than you because he हाँ। belongs to a certain profession or because he um, has lived in Canada than you have. तो ऐसा थोड़ा कुछ चीज़ों की तरफ biased है, but it is what it is. I see Canada in the same bucket as Europe honestly. यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मेरे को तो बहुत stark difference लगा between Canada and US. Like people are really nice. Like जो online meme नहीं होता, the Canadians are nice. या। That is actually true, and I've noticed it. People are nice, the cultures are nice. It's very immigrant friendly city and country overall. Uh, yeah, and people like to chill. They don't work much. Like मैंने तो काम भी किया है तो मेरे को पता है कि दोनों में वर्क कल्चर में भी डिफरेंस है। जैसे हाँ। यूएस अर्ली मॉर्निंग आते हैं ऑफिस 6 एएम 7 एएम, ओ। या टू बीट द ट्रैफिक मेनली, बट तब से काम करना चालू कर देते हैं एंड देन दे leave whenever they want to. They leave after 5 to beat the traffic or like before 5, 3:30, 4-ish to beat the traffic. बट यहाँ पे वो थोड़ा इंडिया ऐसा है, मतलब 10 साढ़े 10 तक लोग आते हैं, 3 बजे निकल जाते हैं। हम्म। यूरोप जैसा है। या हम्म। नाइस।